Okay, so we will start hydraulic machine. Okay, yes. So just think that we just started now. Okay, and you have exam also. So for that, we are just now we are completely focusing on our exam now. ठीक है? अभी क्या है? We will focus only on exam now. Okay. So that time we will studying so many things, but completely exam now. ठीक है? So hydraulic machine. ठीक है? So hydraulic machine. So here, what is the working fluid here? Follow. What is the working fluid here? Water. Very good. Water is the working fluid, and its density is how much? 1000 units. kg per meter cube. मीटर क्यूब डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम सो मास इज व्हाट? केजी मीटर क्यूब. क्लियर यहाँ तक बात है? जस्ट ऐसे समझो, वी हैव जस्ट स्टार्टेड. ओके, डोंट वरी. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज hydraulic machinery. So here we will study what? Any idea what we will study in hydraulic machinery? flow of water. See, this subject is extension of Jet. fluid mechanics, na? Yes sir. So what we will study here now? Any idea? Flow of water. Flow of water. Flow of water. No, but machine is there, na? Something more will be there, I think. Turbines. Yeah. So we will study some applications of fluid flow, na? Veins. So that is, those are like turbines, pump, ये सब लोग पढ़ेंगे. ठीक है? So first we will study this. Okay, so classification and operation principles. So as per syllabus we are just doing. So how we will classify it? So our this hydraulic machine is divided into two parts. Okay, first is turbine and other is pump. Okay, so we will study one by one. So we call it hydraulic pump. Other we call it hydraulic turbine. ठीक है? So देखो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है. तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है देखो. ठीक है? तो hydraulic turbine. Next is hydraulic pump. So how we will classify it again? ये तो जस्ट मैं ऐसे लिख दिया हूँ. But how conversion is taking place? That we will study now. ठीक है? कैसे conversion होता है? ठीक है? See, some of you can see here also. आज किसी दिखे ना, you can come here also. Yeah, that's it. एक chairs are also here. So let's see what is happening here. Water energy. What is converted? Water energy. Water energy. ठीक है, इतना समझ में आ गया. Water has energy also. Water has energy ना. So water energy. So we call it hydraulic energy. Okay. We also call it hydraulic. Water means hydraulic ना. Energy. ठीक है? So water energy get converted into Mechanical. when water energy get converted into mechanical energy. What? Mechanical energy. Yes sir. Which is work. Energy. When water energy get converted into mechanical energy, we call it Work. ठीक है. Mechanical energy means what? Rotation of shaft, जिसको क्या बोलते हैं? Work भी बोलते हैं ना. We also call it work also ना. So when water energy get converted into mechanical energy means rotation of shaft. That is called work ना. Okay. So this conversion we will call what? Hydro turbine. What do we call it? Hydraulic turbine. Hydraulic, just I am shortcut I am writing here. Space is this. Hydraulic turbine. ठीक है? So what is hydraulic turbine? Now understand now.
when water energy get converted into mechanical energy, that is rotation of shaft, those work will call it hydraulic turbine. Understand? So what we are doing here? We are generally making electricity from here, no? Hydroelectric power plant नाम सुने होंगे. Some companies are working on, like JP Power is working on this. JP Power hydraulic. बैठ सकते हो? किसी क्यों बैठे हुए हो? दिख रहा है? यहाँ बैठो ना इधर. सर कैमरा में सर, कैमरा में सर पीछे से बंद है. Some of you can sit there also. You can sit here, ना? कहाँ से दिख नहीं रहा है? Sit. Okay, so you understand now, no? So hydraulic turbine means what? When water energy get converted into mechanical energy. So mechanical energy means through jet, what will happen? It will strike on turbine blade, and this shaft will rotate, and this shaft will go to generator, and from generator electricity will produce. So this we call hydro turbine. So you understand the classification now, no? See, in exam classification can ask because it is there in your syllabus. Okay, so that's a hydro turbine, hydraulic pump. So this conversion, you understand, the water energy get converted into mechanical energy, and this we call hydraulic turbine. Clear? Now you understand what is turbine? Yes, sir. Next we will go to pump now. Yes. Hydraulic pump now. So see what is the conversion here. It is just opposite to this. So what we are doing here? Mechanical energy get converted into hydraulic energy. Mechanical. Let me write first. Mechanical energy get converted into hydraulic energy. Okay, hydraulic or water energy. Okay, so what we call this? Hydraulic pump. Hydraulic pump. Right? Hydraulic pump. So both the things are there in our syllabus. So mechanical energy means what? Obviously through electricity we will use it. Through electricity we will run this pump, and what will happen? Water you can bring from low height to higher height. Okay. So when mechanical energy get converted, so what is happening here in pump? We are using electricity. Now electricity is what? Nothing but work only, na? Mechanical work only, na? So because of that, what is happening? Hydraulic energy. When you convert mechanical energy into hydraulic energy, so we call this kind of device as hydraulic pump. Clear? So now you understand what is hydraulic machine. Complete classification you have understand now, no? Bolo? Yes, sir. Clear, man? Yes. Okay. So our one part is already over now. Classification, operation principle already we have seen now. Principle, all these things are there. So next is our basics like Euler equations, momentum. See, in impact object, what we have studied? Change of Change of momentum, na? So change of momentum comes from which theorem? Euler theorem or Bernoulli theorem? Euler's theorem. Yeah, very good. Euler's theorem, na? So we'll study. Just we'll have a quick revision of those things. Okay. So how it can you sit here, na? Yeah. So all of you have written this. Yes, sir. All of you have written this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next we will study some terms of those things, na? Bernoulli's equations comes from Euler equation, na? Clear, na? Bernoulli equation comes from Euler equation or what? बोलिए. So
equation is what? Momentum equation or energy equation? Energy equation. Energy equation, ठीक है? So Euler equation is momentum equation and Bernoulli equation is Energy. energy equation. Just I am revising you. Okay, nothing new I am doing. This things we have already studied. Okay. क्या ये मोमेंटम इक्वेशन ना ये ऊपर जाएगा लाइक करें सब्सक्राइब यूलर इक्वेशन क्या है मोमेंटम इक्वेशन ना यस सर so our heading okay just let me write somewhere first Bernoulli equation so Bernoulli equation is what energy equation L na Bernoulli equation is what energy equation why we call energy equation any idea bolo conservation of according to conservation of energy. okay so this we have written na so next we will study Bernoulli equation from Euler equation so our next topic is what Bernoulli equation from Euler equation so write this term Bernoulli equation I will write here okay this is our topic now equation from Euler equation ठीक है this is our topic so they may ask you this question also I don't know so what is the Euler equation tell me okay so Euler equation is dp by rho ठीक है यहाँ पर होगा यहाँ पर लिखते हैं यहाँ लिखते हैं यहाँ से देखिए जरा dp by rho ठीक है डेंसिटी ये क्या प्रेशर है ना बाई डेंसिटी ठीक है प्लस जी जेड ठीक है इट्स विल बी डी जेड वी आर एलिमेंटल वी आर स्टडीइंग एलिमेंटल ठीक है डी जेड एंड प्लस v equal to what g होगी so what is this Euler equation okay clear बोलो clear है ये बातें all of you what is Euler equation पढ़े हुए bullet Yes. remember Yes. see this is delta p divided by rho plus g dz Yeah, sir. plus yeah. dp equal to 0 so this is Euler equation okay so what Bernoulli has done simply integrate it so this is very means simple thing Bernoulli has done but most of the thing Euler has done so this equation how it came already you have studied okay I am not going to that because in engineering fluid mechanics you have studied this derivation sure na so I am not going to that I am coming to our Bernoulli equation so this is momentum equation okay so I am coming to that so what we will do here he has done what simple thing he has done only just integrate it so what he has done just integrate it so integrate okay so what he has done so density is what constant na Yes, sir. but some assumptions he has taken Bernoulli what he has done some assumptions he has taken so first assumption is steady state
steady state means velocity any property is not changing with time. every time. So first assumption, ठीक है? See, they can ask you this assumption also. Incompressible. Understand? ठीक है? Let me add. So density is okay. Next is density is constant. Second is density is constant. So density is constant means what is the meaning of density is constant? Density is constant means Incompressible. very good. Incompressible means there is no compression. Yes, sir. Generally, water don't compress more, but so we will call it incompressible. And third assumption is irrotational. Irrotational. Rotational नहीं, flow नहीं होना चाहिए. and third we will irrotation and one more assumption is inviscous. 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 Irrotation is also one assumption. Okay. So these are some assumptions. So we can see a density is constant. Can you see? If density is constant, what will happen? In integration, it will come out now. dP plus. देखो g is already constant, so I will take g outside. dz B is con- plus dp equal to what? अभी इतना नहीं होगा. It will become constant ना? Yes, sir. I am just writing C1 constant. ठीक है? कुछ भी C1 constant can be 1, 2, 3, 4 anything. Clear? So next is what we will integrate it now. So when you will integrate it, what will happen? This dp will become p now. P by rho plus g. ये क्या हो जाएगा? Z. Z plus ये क्या होगा? बोलो. B square by 2. B square by 2. ठीक है ना? Equal to C1. Just I will C1 way. It can be C1, C2. ठीक है? Next, what I will do here? I will divide G. Okay? What he has done? जो किया just वही भी करते जाते हैं. Just divide it by G. So what will happen? P by rho G plus Z plus P square by 2G equal to constant. यहाँ भी डिवाइड होगा ना? No. इधर भी डिवाइड होगा ना? राइट साइड ऑल्सो डिवाइड होगा ना? मैंने नया कांस्टेंट लिया C. See, it can be C1, C2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? See, right side also you will divide it by G now. So it will be new constant. 5 divided by 2. क्या होता है? 2.5. New constant. So this is just a constant, okay? So what is this? This is that law. This is our Bernoulli's equation. This is that, and so what is this speciality? So suppose there is, आपने बताया ना, आप लोगों ने किसी ने बताया है. Suppose ये flow हो रहा है. There is suppose section 1 and there is suppose section 2. So what will happen here? Total energy at section 1 will be equal to total energy at section 2. This is energy equation, okay? So total energy at section 1 will be equal to total energy at section 2. Right? Because okay, first of all you will complete this part.
सो इसके बाद देख लो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 इन 5 फ्लो। ऐसे लिख लो इन 5 फ्लो टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। ये लिखा Type no. Sir, repeat again, sir. Sir, kalappa. सर रिपीट कर सर। हाँ देखो इन ए 5 फ्लो at any two section in a pipe flow नेक्स्ट सर। in a pipe flow at any two section in a pipe flow at any two section सेक्शन the energy is conserved व्हाट सर? in a pipe flow at any two section energy is conserved that is ऐसे लिखते हैं that is total energy at section 1 That is total energy. that is total energy at section 1 that is total energy at section 1 is equal to total energy at section 2 Equal to. ठीक है टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 ठीक है अब ये टोटल एनर्जी क्या होता है व्हाट इज टोटल एनर्जी है वी हैव जस्ट आई टोल्ड दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड बट हाउ मेनी एनर्जी टोटल एनर्जी आई टोल्ड मींस देयर विल बी सी इट इज दिस डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड ऑफ एनर्जी ठीक है व्हाट आर दोस एनर्जी दैट विल डिस्कस नाउ द फर्स्ट इज आवर प्रेशर एनर्जी Py Roji can you see this Py Roji Pressure head. Hari Rafa. pressure head. Either you take in terms of rate or you take in energy anything. So P by ये क्या है Roji. ठीक है ये क्या एनर्जी फॉर्म है ना सर एनर्जी फॉर्म है ना so P by rho G is what pressure head Yes, sir. इसको हेड फॉर्म में बोलो या एनर्जी फॉर्म में बोलो because this is energy equation na Bernoulli is what Energy. Energy Equation. okay Yes, sir. either you write in terms of head के टर्म में पढ़ते हैं या फिर एनर्जी के टर्म में पढ़ते हैं ठीक है next is what Z. Datum Z head. is what? Datum head. potential head So Z datum is head. what क्या बोलो Datum head भी हो सकता है. Datum head. potential head या एनर्जी कुछ भी ठीक है नेक्स्ट टर्म इज v स्क्वायर by 2g kinetic head. kinetic energy Kinetic head. Kinetic head. kinetic Head. head या एनर्जी का फॉर्म लिख सकते हो ठीक है clear so this is all so this is what I told total energy is conserved na means total energy means sum of pressure energy potential energy kinetic energy this will be means at section 1 the sum of total energy means sum of potential energy Pressure head. pressure energy potential energy kinetic energy will be equal to Section 2. equal to at section 2 also ठीक है ये हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी वी हैव सॉल्व दिस थिंग्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हो ना जस्ट रिवाइज करा क्लियर है समझ में आ गया Yes, sir. यू कैन राइट डाउन ना इन एग्जाम अगर ये आ गया तो Of course. कोई ये कौन करता है एनी ऑफ यू हैज ओपनड सिलेबस जस्ट ओपन योर सिलेबस
देखो क्या क्या कंप्लीट हो गया मॉड्यूल 1 का बोलो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन ऑलरेडी ओवर ओके कोई खोला है यस सर हाँ देखो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन ऑलरेडी ओवर ठीक है क्लासिफिकेशन ऑपरेशंस प्रिंसिपल ऑलरेडी ओवर क्या प्रिंसिपल है मोमेंटम पर काम करता है ये एनर्जी पर काम करता है क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दिया कि Euler equation divided into parts turbine and pump okay next देखो Euler equation Euler equation and turbine machines yes sir Euler equation Net head. ये हमने पढ़ लिया ठीक है so Euler equation Sir, खोले हैं। what is energy equation we have seen ठीक है next is through momentum equations we have derived it ना बताओ जो momentum equation था आपसे से derive किया था ना force mass into velocity बदला रखता भूल गए बस की वजह से हाँ क्या ये जो हम लोग पढ़े थे Yes, sir. इसको मिटाने से Yes, sir. should I erase it Yes. complete ना चलो सभी क्लियर हो Yes, sir. ये टीचर का अपना दिखाएंगे ननम छोड़ दो तो बाल गिर जाए तो आज की सोच ले लिया यार थोड़ी पूछना नहीं है see one if you have concept question can be asked in any form Yes, sir. classify it यस सर write the energy equation write the MCs write the classification कुछ भी दे देगा Yes, if sir. you have concept you can write anything Yes, sir. यस सर Just राजू start भी with है questions Ask will come anything. from there ना एनीथिंग नंबर मिल जाएगा जीरो आउट ऑफ जीरो so momentum so we have studied now force क्या पढ़े थे force में बोलो fx force क्या पढ़े थे बोलो हाँ suppose fx suppose force क्या force था बोलो momentum equation ना v equal to momentum rate of change of momentum in the direction of force what is this ज़्यादा उछल रहा है rate of मोमेंटम Change of moment. चेंज ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum in the direction रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of डायरेक्शन force यही था ना यस सर तो मोमेंटम क्या होता है बोलो देखो रेट वर्ड लिया है रेट रेट मींस पर यूनिट टाइम यस सर ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है तो मोमेंटम इज व्हाट mass पता है ना तो क्या होगा इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम मोमेंटम इज व्हाट इनिशियल मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम होना ना देखो Yes, sir. मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बाय माइनस माइनस फाइनल मोमेंटम यस सर इस लाइन को कैसे लिख रहे हैं ऐसे चल पड़ेगा ना रेट डिवाइडेड बाय टाइम पर मिनट टाइम बोलेंगे यस सर देखो मोमेंटम का यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे इसको यहाँ तक बातें क्लियर हुआ तो इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी Yes, sir. Yes, sir. बोलते हैं ना मास इनटू वेलोसिटी तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस क्या होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी यही होता है ना डिवाइड बाय टाइम टाइम चलो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं हम मास इज दिस ना इनटू v1 माइनस मास इनटू v2 कैन आई राइट लाइक दिस डिवाइड बाय टाइम ऐसे लिख सकते हैं तो इसके आगे क्या करेंगे मास को
फोर्स कॉमन है ना? यस सर। किनेटिक कॉमन, बाय टाइम कर लेते कॉमन को। अच्छा चलो साइन इनटू क्या आ जाएगा v1 माइनस v2, सही है ना? m by t is what? m dot पढ़े थे ना? v1 माइनस v2, ठीक है? पढ़े हो बोलो? यस सर। ये fx है, बट ये fx किसका है? वाटर का है ना? See this force is water force, not on vein force. Clear? Sorry ये okay ये तो फिर आपका वही हो गया फैन फोर्स हो गया फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन ऑन बैक v1 माइनस v2 वाटर फोर्स में ओवर बैक, ठीक है? व्हाट वी हैव रिटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लग रहा था कहां पर? फोर्स लग रहा है वैन पर लग रहा है ना, वैन पर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स द v1 माइनस v2 ना। क्लियर? मैंने क्या बताया था आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वाटर रहता तो वाटर क्या होता? v2 माइनस v1, बट वैन पर फोर्स लग रहा है v1 माइनस वो वाटर वैन पर फोर्स लगा रहा है, दैट वाटर इज अप्लाइंग फोर्स ऑन वैन, so that's why it will be v1 माइनस v1 minus v2, not v2 minus v1. So now you have understand now how momentum equation, how momentum is Euler equation. In Euler equation was momentum equation now how it is used in our in deriving our force also. Clear? समझ में आ गया? We have used this already, just अभी मैं इसे पढ़ा चुका हूँ, just I am revising it. कौन सा ये? देखो सिलेबस देखो once again. Euler equation for turbo machines. I have this. Net head developed. Clear by now? pump. Next is what? Net head developed by pump and Net head turbine. developed by pump and turbine. Yes sir. Next A है ना? Yes sir. देखो जल्दी से लिखो इसे. हो गया सर। Module 1 खत्म। Module 1 खत्म। तब तक बंद कर दो। इसे यहाँ पे हाँ? आयुष रुक दे कौन जाएगा? रुक दे। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो स्टार्ट। देखो नेट अब क्या है? नेट हेड हमने क्या पढ़ा अभी? या फर्स्ट बेंच we have studied now energy equation just now. Yes, from Bernoulli's equation how energy equation is derived. So क्या हमने पढ़ा था? हेड के टर्म में पढ़ा था ना? ये सर टर्बाइन। हेड के टर्म में पढ़ा था। Yes, sir. In terms of head. So next your is neighbor net head developed by pump and turbine. Okay, so we will study now net head developed by Pump and turbine. पंप एंड टरबाइन। pump and turbine. Okay, so कैसे देखते हैं? पहले we will start from pump. Okay, see in your exam pump will come. Okay, exam में क्या आएगा? Pump. Pump. Okay, so as their sir has started from pump. अभी तो हमने just starting किया है, so no problem. We will just convert it to pump. ये होता है।
जेड के टर्म में ना, Yes, एच के sir. टर्म में पढ़ेंगे, ठीक Get है? a bed. हम लोग को ये समझ में आ गया कि हेड क्या है, एनर्जी के टर्म में ना, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी का। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे हेड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो पहले आवर टॉपिक सपोज पंप है ना, सो विल टेक सम फर्स्ट पंप दैट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है? You can take any pump, okay? But I am just I have written centrifugal. ठीक है? तो चलो इसका डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ ड्रॉ करेंगे इधर लिखते हैं। देखो सबसे पहले ये साफ होगा, ठीक है? साफ देखो ये क्या है, साफ। साफ थी तो इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट होगा, मींस मोटर, सपोज मोटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट होगा और ये रोटेट होने वाला है। दिस इज गोइंग टू रोटेट ना, एनी डाउट? यू हैव एनी डाउट? Yes, You ask. check. So this is what shaft. So this shaft means it will rotate using our motor. ठीक है? So what will happen here? ये बुझू. Okay, so pump हम लोग कर रहे हैं ना, we are centrifugal pump. So in centrifugal pump what will happen? Once again mechanical energy get converted into hydraulic energy. Hydraulic energy. Mechanical energy ये बुझू. converted into hydraulic energy. Yes, sir. हाइड्रोलिक एनर्जी कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज हैपनिंग? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ये क्या हो रहा है, सी या Yes. Future. बुझू. ए बुझू बुझू. ये कैसे हो रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, राइट है? ये कैसे हो रहा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या हो रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ ब्लेड क्या होगा, सक्शन विल क्रिएट एंड इट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम Energy will generate. you have class. You have class now. सर इनका क्लास है थर्मोडायनामिक्स, ये बैठे हैं हाइड्रोलिक इंजीनियर। Confusion is there. बाय मिस्टेक Anyway, you learn something. this subject also related. You learn something. Okay, no problem. You want to go? You don't learn this subject, no? This subject You learn again something, no? Please learn. गड़बड़ हो गया था. Okay. You can think. तो क्या हो रहा है देखो. अच्छा एक बात बताओ, बचपन में खेले थे? बचपन में बहुत खेले. बाल्टी होता था, बाल्टी. Yes sir. बाल्टी में एक्सरसाइज करने मारते थे. Yes Yes, sir. sir. क्या होता था बाल्टी में? रोटेशन. सर वो उसमें तो एनर्जी पानी भाग जाता था ना इधर उधर? Yes, sir. Yes sir. या फिर ऐसे करोगे क्या होगा? Yes sir. So this is what you were doing, nothing but centrifugal effect. Yes sir. In center. ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण आपका Water- create हो रहा है, वो प्रेशर एनर्जी में Water rotating ठीक है? So यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है? तो चलो हम लोग so this is our अब देखो ये हाथ से तो करना नहीं है, we are not going to do by hand ना, so using motor will use it ना, using pump. Yes, sir. पंप में क्या होता है,
We will have motor means rotation of Yes, shaft. sir. Turbine also. And on shaft what? So ये पहले देखो shaft क्या था? This is shaft. So this is shaft here. I am just showing you front view. Okay. So above this, what will happen? We will put one blades. You have a hood and I have a shaft. We call it runner. Okay. देखो runner है ना ये क्या है ये? Yes. Okay. So here we will have this kind of blades are there. Turbine. Okay. Yes, sir. These are the Fan. blades. Yeah, this is our shaft. ठीक है? This is blade and we will have one casing also. See, ये यहाँ पर हो रहा है, but we will have one casing also where water will Rotate. go up. देखो casing कैसा बनता है? We have casing like this. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? दिख रहा है? चलो ना. Yes, sir. कॉफी में इतना अच्छा नहीं बनता यार. कोई बात नहीं सर, चलेगा इतना ड्राइंग नहीं कर। ठीक है, ये है casing. Clear? वाटर गो थ्रू। और ये क्या हो रहा है? वाटर ऑफ हो रहा है. ठीक है? यहाँ वाटर ऑफ हो रहा है. वही तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर अच्छे से समझना. वाटर इनसाइड इनकम। ठीक है? देखो यहाँ से क्या हो रहा है? वाटर. देखो ये रोटेट हो रहा है. ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. यस सर। क्लियर है? Shaft. ये क्या हो रहा है? शाफ्ट रोटेट हो रहा है. Yes, sir. यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? उससे क्या होगा? ये सारे ब्लेड्स भी रोटेट होंगे. यस सर। ओके, रोटेट होंगे ना. और यहाँ पे क्या होने वाला है? ये हमारा ये हमारा सब है ना. यहाँ पे ये पानी का लेवल यहाँ है. सपोज ठीक है, पानी का लेवल है. सपोज ये पानी का लेवल है और हमने क्या किया यहाँ पे फिटिंग किया और यहाँ पर हमने जाली लगा दिया ना. जाली. यस सर। पानी। यस सर, वाटर जाए। So these are all water. ये क्या है? वाटर. इसलिए वहाँ बिठवाए थे। These are all water. Can you see? बेकार में वीडियो में चल जाएगा। Clear? So our task was to study head. हम लोग का syllabus में क्या है? Head. Different head of turbine and Turbine pump. pump. This is our pump. Okay. Yes, All sir. the names I will give you. Not worry. But first we will study head. Okay. So what is head here? This is, if you will see, this is our complete head na, from here to here. This is our complete head na. यहाँ पर हेड ऐसे लिखा हुआ है. हेड. बोलो. यही है ना हेड. बोलिए. So this we call total head. H को क्या बोलेंगे? टोटल हेड. ठीक है? हेड को क्या बोलेंगे? टोटल हेड. टोटल है। H को क्या बोलेंगे? टोटल हेड. क्लियर? पर अभी आप देखो मेरा ये डिवाइडेड है टू टर्म. यहाँ से देखो, अगर यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये क्या पाइप है? सेक्शन पाइप है. यहाँ पर दो पाइप है. We have two pipe. One is this pipe and other pipe is this pipe. यस सर, वो एक वाटर निकाले। ठीक है? जहाँ आपको वाटर निकाल। ये करना है. ठीक है? यहाँ पर आपको टोटल में से ऊपर तक जाना है ना आपको. और कितना दूर तक जाओगे पता नहीं. यहाँ स्पेस नहीं है. So this we call suction. This we call discharge. फिर से समझो. Suction. Suction मतलब वैक्यूम क्रिएट करना ना. Yes, sir. Suction. सेक्शन To pull. हाँ. So इसको क्या बोलेंगे? Suction pipe. इसको क्या बोलेंगे? Discharge pipe. Discharge. Delivery pipe. Yes, sir. Discharge pipe and delivery आउटलेट pipe. डिस्चार्ज। ठीक है? So this is our so similarly head. In terms of head also we study ना. Head. एक बात बताओ, ये क्या बोलते हैं जो हमारा
जो पानी टंकी देखो Yes. Yes, sir. Yes, sir. वाटर टैंक देखो ना Yes, sir. always it is at some height why ये सर प्रेशर से वाटर नीचे आएगा. समझ रहे हो ना so that is nothing but your वो एनर्जी है ना हेड के टर्म है ना वो हेड है समझ रहे हो Yes, एक sir. एनर्जी है इसके थ्रू ही आपके घर में पानी आ रहा है Yes, sir. अंडरस्टैंड आपने क्या किया कि सपोज आपने बकेट यहाँ लगा दिया या फिर आपने टैंक यहाँ लगा दिया पाइप यहाँ से निकाला और यहाँ करोगे उससे ऊपर तो वाटर विल नॉट फ्लो ना आपको सक्शन करना पड़ेगा Yes, sir. सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो so this is our total head so this is our suction head this is suction pipe ना so we will call it suction head HS and this is our HD. discharge head बोलो हमने पढ़ लिया ना हेड के टर्म में एनर्जी के टर्म में तो सक्शन हेड एंड डिस्चार्ज हेड so total head is divided into okay so this is what HS minus HD. suction head और ये क्या है Discharge डिस्चार्ज head. डिस्चार्ज एंड डिलीवरी हेड डिस्चार्ज जैसे बुक में डिलीवरी दिया रहता है डिलीवरी है so total head will be equal to what tell me HS minus HD. h will be equal to HS minus HD. h suction plus HD. h delivery can I write like this Yes, sir. बोलो Yes, sir. total head लिख सकते हैं ऐसा Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया चलिए सब लोग उसको नाम भी लिख देते हैं जल्दी से ठीक है अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक वाल्व लगाना पड़ेगा हमें Yes, sir. ठीक है इसको बोलेंगे Delivery डिलीवरी वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व Yes, sir. डिस्चार्ज वाल्व क्या रहा है बच्चा? Discharge. वाल्व ठीक है Power apparatus. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक वाल्व लगाएंगे सक्शन वाल्व ठीक है This one is a full value. Next is ठीक है इसको क्या बोलेंगे सक्शन वाल्व बोलेंगे section. ठीक है सक्शन वाल्व या इनलेट वाल्व आल्सो वी कैन टेक ठीक है दिस इज आउटलेट दिस इज इनलेट क्लियर दिस इज व्हाट impeller eye this is what impeller eye Sir, वो तो आई ऑन द पंप है सर. ठीक है impeller हो गया ये और इसको क्या बोलेंगे impeller मतलब इसको आई होती है impeller eye आई ऑफ पंप. और इसको बोलेंगे impeller Impeller. ऊपर वाला होगा. ठीक है Casing. ये हो गया और Casing. इसको बोलेंगे Casing. स्पाइरल केसिंग ये क्या है देखो स्पाइरल है ना Yes, sir. so we'll call it spiral casing इसका एक और भी नाम है स्पाइरल का वॉल्यूम केसिंग में बोलते हैं ठीक है स्पाइरल केसिंग या वॉल्यूम केसिंग Casing sir. K से ठीक है और बताओ कोई नाम जो बचा हुआ है Some delivery pipe. हाँ, ठीक है इसको बोलेंगे फूड वाल्व तो क्या बोलेंगे Food valve. Strainer भी कर सकते हैं. क्या बोलेंगे फूड वाल्व Strainer भी कर सकते हैं. हाँ ठीक है इसका नाम Strainer. ट्रेनर ठीक है फूड वाल्व या स्ट्रेनर ठीक है तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हेड क्या है सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड ये बात समझ में आ गया 1 minute. बोलिए टोटल हेड समझ में आ गया पूरा लिख. नेक्स्ट लिखो मैनोमेट्रिक हेड यहाँ तक बात समझ में आ गया Yes, sir. पहले लिख. सर लिख रहे हैं. सब लिख लेते नहीं लिखो लिखो जल्दी से लिखो।
क्लास 1 घंटा मेरा तुम लोग से में 1 घंटा कैसे निकलता पता ही नहीं चलता मुझे। बस क्लास में 2 आवर्स सिलेबस है। वीक में एक ही क्लास रखो, 2 घंटा रखो, थोड़ा फ्लो आगे में टाइम लगेगा। मैनेजमेंट सही नहीं। समझ में आ रहा है पूरा? मुझे सेंटर में करने का रहता है। कंफ्यूज तो सर उसको था, दूसरा क्लास में बैठ गया था बेचारा। तो आज सेंटर वीडियो हम क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है? रुको भाई, लिखो मैनोमेट्रिक हेड। सर 1 मिनट सर। सर वेट सर। तो ये क्या जो आपने पढ़ा था, ये क्या है? स्टैटिक हेड। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक हेड, ठीक है? इसमें सक्शन हेड और डिस्चार्ज हेड आता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक हेड, ठीक है? ये क्या टोटल हेड को स्टैटिक हेड भी बोलते हैं, टोटल हेड या स्टैटिक हेड, ठीक है? स्टैटिक हेड क्लियर है ना? इसको बेटर है कि स्टैटिक कर दो। स्टैटिक हेड इक्वल टू सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, ठीक है? तो पहला हेड हमने क्या पढ़ा? स्टैटिक हेड। पहला हेड क्या पढ़ा? स्टैटिक हेड। ये 1 नंबर कर दो, ठीक है? सेकंड नंबर देखो यहां पर, HSD करते हैं। सभी लोग कंप्लीट हुआ? पहले देखो मैनोमेट्रिक हेड के बाद एग्जाम में अगर आ गया व्हाट इज डिफाइंड हेड्स फॉर पंप एंड टरबाइन, ऐसे बोल देगा ना, तो पंप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मैनोमेट्रिक हेड दिखाएंगे, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल राइट मैनोमेट्रिक हेड। तो लिखो व्हाट इज मैनोमेट्रिक हेड? इट इज द हेड, लिखो सर 1 मिनट सर। लिखो यहां पर, इट इज द हेड वीडियो देखो, इट इज द हेड
is the head, it is the head against which it is the head against which pump has to work. Pump has to work. क्या ये? It is the head against which pump has to work. Clear? मतलब सिर्फ ये हेड में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है? वो भी जस्ट आएंगे, लाइक फ्रिक्शंस पड़ेगा ना, फ्रिक्शंस उसको भी ओवरकम करना है ना. सी आपने जो यू थॉट दैट कितना पावर देना पड़ेगा हमें. यहाँ पर पंप में क्या है? यू हैव टू गिव वाटर, पंप यू हैव टू गिव पावर ना. सो कितना पावर देना पड़ेगा? हमें पावर में टू गिव. सो फर्स्ट इज दिस हेड यू कैन सी प्लस दिस हेड, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड. ये देखिए ना. But apart from this, we have some more losses also which we have to come over. Those are frictions ना. यहाँ पर फ्रिक्शन भी तो है ना. Yes sir. ये समझ नहीं. Yes sir. देखो जैसे मान लो ये वेट है, इसको मुझे वहाँ से वहाँ तक चलना है. तुम क्या किए कि वेट, we have to consider only weight of this tool. But friction is also there ना. Yes You sir. have taken only distance. आपने क्या किया? सिर्फ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको खेल के ले आना है. Okay, so you have considered only its weight and its distance. But friction is also there ना. Yes sir. That also you have to the power और extra लगाना पड़ेगा. You have to take, you have to give some extra power for to overcome this friction also ना. तो वही है, ये friction भी आएगा इसमें. तो मैग्नेटोमेट्रिक क्या है? देखो अच्छे से लाइंस देखो. It is the head against which pump has to work. तो कंप्लीट एनालिसिस यहाँ बताएगा. मतलब इतना पावर आपको देना पड़ेगा. जब तुम दिस मच पावर, ये पावर नहीं है, तो सिर्फ स्टैटिक है. ये एक तरीके से सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है. यहाँ से यहाँ तक आपको पंप करना है. बट फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड. यहाँ फ्रिक्शन है कहीं पर देखो. फ्रिक्शन आई हैव नॉट कंसीडर्ड ना. फ्रिक्शन इज आल्सो देयर. क्लियर? समझ में आया सभी को? बोलो पहले. Yes sir. Yes sir. तो देखो सभी लिख लियो. मुझे बताओ. यस सर. ये मिटाओ ना इसको. हाँ सर. सिर्फ ये छोड़ देना, ठीक है? स्टैटिक वाला छोड़ देना. स्टैटिक हेड छोड़ देना. ये देखो. तो मैग्नेटोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू नाउ मैग्नेटोमेट्रिक हेड इज इक्वल टू क्या क्या होगा? बोलो. तो पहला जो होगा स्टैटिक हेड होगा. बोलो. स्टैटिक हेड होगा. बोलो. स्टैटिक हेड तो होगा ही ना. जो डिस्टेंस आपको पंप करना है दैट विल बी देयर. ओके. प्लस और क्या क्या होगा? बोलो. पोटेंशियल. फ्रिक्शंस होगा ना. Friction. ये तो आपने हो गया ना पोटेंशियल यार. स्टैटिक इज ओवर. फ्रिक्शन विल बी देयर ना. सो आई एम राइटिंग हियर HF. ठीक है? HF मींस फ्रिक्शन लॉस. ठीक है? प्लस एक टॉर्क और भी आता है, दैट इज V2 स्क्वायर बाय 2G. इसको भी ये भी था ना. एक टर्म याद करो. ये भी एक हेड था ना. Yes sir. Potential head. इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड. इसको भी ओवरकम आपको करना पड़ेगा. ठीक है? फाइनल वेलोसिटी हेड जो है वहां पर उसको भी करना पड़ेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड. यहाँ तक बातें क्लियर हो? मुझे बताओ. फिर से समझो एक बार. मैग्नेटोमेट्रिक हेड मतलब क्या हुआ कि इतना पावर आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द सम ऑफ व्हाट? फर्स्ट स्टैटिक हेड. फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट टर्म ना. प्लस आवर वेलोसिटी हेड. आपको वेलोसिटी हेड को भी ओवरकम करना पड़ेगा. दैट प्लस पावर यू हैव टू गिव. सो दिस इज वेलोसिटी हेड. दिस इज व्हाट? बोलो क्या है ये? Friction head. Against which pump has to work? Friction head. फ्रिक्शन हेड. ये हेड है ना. देखो फ्रिक्शन हेड अगेंस्ट व्हिच पंप हैज टू वर्क.
against which ठीक है, ये क्या फ्रिक्शन हेड, ये वेलोसिटी हेड, और ये क्या है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या स्टैटिक हेड, इसमें दैट इज इक्वल टू hs प्लस h, ठीक है। तो स्टैटिक भी बोलते हैं, टोटल हेड भी बोलते हैं, ठीक है। पर मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, से बोलो कभी। It is the head against which pump has to work. पूरा कंप्लीट है, pump has to work. यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा और ये करें, देखो जल्दी हो गया सर। हो गया सर। इसको मिटा दो। अभी यस सर, यस सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए रिएक्शन मैनोमेट्रिक हेड दैट इज इक्वल टू सक्शन हेड। देखो ये वाला लिख रहा हूं, सक्शन हेड hs, ठीक है। देखो मैं इसी को जस्ट थोड़ा ये कर रहा हूं, ये मेन है, इसमें क्या आ रहा है सक्शन हेड प्लस सक्शन हेड आ रहा है ना। एक बात बता, सक्शन हेड है तो सक्शन का ये जो फ्रिक्शन है इसको मैं दो में डिवाइड होगा ना, दिस फ्रिक्शन हेड विल डिवाइडेड टू टर्म, दैट इज अगेन सक्शन पाइप प्लस डिलीवरी पाइप। See, we have two pipe here now. Suction pipe is different, delivery pipe is different. So friction also will be different. Clear? Friction क्या होगा? क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट दिया तो कुछ सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है? We have suction, friction, ठीक है, कैसे करेंगे? Loss लिखा है, loss लिखा है। गया या फ्रिक्शन ही लेते हैं ना, या फिर लेते हैं ना, अच्छा है। प्लस सेक्शन हो गया, देन डिलीवरी आ गया यहाँ पर एचडी। देखो मैं इसी लाइन को फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए, इसका भी होगा डिलीवरी का भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा ये ना वेलोसिटी हेड, ये क्या होगा v2 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है ना। देखो इसी को ये बड़ा सा कर दिया, दो मोटा से कॉर्ड से। ये 3D है सर, इनको मॉडल लिखे ये भी है ना, 3D है ये, ठीक है। क्योंकि हमने 1 2 तो नहीं लिखा ही है अभी तक, 1 2 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है। सो बी डी डिलीवरी है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया? वन आवर कंप्लीट, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड। ये है, देखो हेड आगे एग्जाम में लिखोगे ना, एग्जाम में आ सकता है हेड, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यूनिट 1 में हेड है ना, देखो अभी एक पंप टरबाइन में बचा हुआ है। सर हो गया ना क्लास 1 आवर। सब लिख लिए बोलो? यस सर। आगे बढ़े? 7:30। चलो टरबाइन हेड बचा हुआ है ना, पंप हमने ले लिया। सी मॉड्यूल 1 इज डिवाइडेड इनटू, क्या लिखा हुआ है देखो मॉड्यूल 1 में पंप एंड टरबाइन। पंप एंड टरबाइन हेड। Yes, sir. जैसे टरबाइन हेड हम कर लिए, मॉड्यूल 1 इज ओवर, यस सर। ठीक है। चलो उधर बना लेते हैं, मिटाओ इसे, देखो याद कर लेना, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, हर जगह ये मैनोमेट्रिक हेड आएगा। आज के क्लास में मैनोमेट्रिक हेड आने वाला है, मिटाओ या यार। ये फोटो ले लो इसका, कोई दूसरा किसका फोटो लेना है इसका?
राजवीर से फोटो ले लो, मृत्युंजय का कैमरा सही नहीं। चाचा ग्रुप में आ ही जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस मत बेच ले राजवीर। चलो टर्बाइन भी देखो। देखो ऐसे आए एग्जाम में तो ये ग्रो करना है। ठीक है यस सर, देखा था मेरा क्रिएटिविटी देखिए। आधा पेज वन पेज वन फिगर वन पेज वन फिगर क्रिएटिविटी सर मोमेंटम स्टैटिक जोड़ के ग्रुप पे जोड़। 4 पेज सर मैंने पूछेगा इतना एक पेज में फोटो, एक पेज में दिखेंगे, दूसरा पेज में फोटो, दूसरा पेज में दिखेंगे। दूसरा पेज में फोटो को डिटेल करेगा भाई, एक पेज में फोटो दूसरे पेज में डिटेल तब वगैरह में स्टेटिक तब जीरो चलो वी आर अबाउट टू फिनिश आवर मॉड्यूल 1। तो देखो मॉड्यूल 1 में कैसे करते हैं, क्या है डैम है ना। देखो डैम पता चला तुम बैक देखो डैम है ना। जाए तो ज़्यादा दिन आई देखो डैम बना गया थोड़ा सा। ये दिन चले जाएंगे ये दिन चले जाएंगे ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा पढ़ा लेगा और बस रिवाइज करा रहा है। ज़्यादा तो नहीं हो गया ना। देखो समझ के करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर रट्टा मारोगे then there is big problem। ठीक है रट्टा नहीं मारना कहीं पे रट्टा मारा हुआ है तो बस और इसको पढ़ने का तरीका भी देखो। सिर्फ ऐसे से पलटना है ना। देखो यस सर ठीक है कोई कॉपी में लिखे हो एवरीडे जैसे कोई पढ़ लेना है। ठीक है इन माइंड का रट्टा मारना ऐसे से पलटना है। चिट्ठी जैसा पर रेगुलर करना है, रेगुलर करना है। ठीक है यस सर सुबह शाम। चलो ये ध्यान बना लिया आपने। मैं राइटों में करना सुबह आई देखो ध्यान से क्या करते हैं हम लोग देखो अच्छे से। ध्यान से ये क्या करते हैं सबसे पहले वो पिएगा फिर क्या हमारा तो नीचे के देवे करेगा तब देखो ध्यान से देखना। ध्यान है दिन धीरे धीरे मार देना ये क्या है इनलेट और डैम है। ठीक है ये क्या है इनलेट और लगवाएंगे देखो देखो थोड़ा सा और बचा हुआ है। इनलेट और डैम है ना। यहाँ पर हमने क्या किया नोजल टाइप से ऐसे बना दिया ना। यस सर। ठीक है तो अभी ये क्या होगा ये जाएगा पानी ऐसे से करके ना कहाँ जाएगा हमारे नदियों में से सर मृत्युंजय बोला सर खेतों में देखिए।
तो यहाँ पर एक एच जी करके है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस हेड। देखो मुझे हेड स्टार्टिंग में क्यों पढ़ा है एक तरीके से आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, हेड के टर्म में एनर्जी पढ़ा जाता है ना, यह स्टडी टू टर्म्स ऑफ एनर्जी ना। यस सर। इसलिए मैंने स्टार्ट किया वहाँ, ठीक है। अभी देखो एच जी आ गई है, ये भी हेड है। कभी देखो कोई बैरल्स टाइप का ऐसा कुछ देखो कहीं आप लोग? यस सर। पानी का ये इस तरह का देखो डैम। यस सर। यस सर। देखिए सर। फरक का रक्का में ठीक है, डैम देखो ना तो देखो ये डैम ही है ना, देखो डैम है। यहाँ से क्या करते हैं, छोटा सा पाइप पतला सा निकालते हैं और एक पाइप के थ्रू यहाँ से मिलाते हैं वाटर। देख रहे हो ये वाटर है ना। यस सर। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मोटर सर क्या वही है जम टैंक के नीचे क्या ये क्या है सर? तो सर डैम में रहता है सर। क्या सर वो पंखी है, मोटर है भाई। टरबाइन है, टरबाइन वो मोटर है भाई, मोटर लगेगा वहाँ पे। देखो टरबाइन है ना। है सर, टरबाइन है सर, मोटर लगेगा वहाँ। मोटर लगा देखो टरबाइन ऐसे घूम रहा है ना, ये तो मिनी इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है, सबका एक नाम है, ठीक है। जब भी एग्जाम में आए तो क्या पढ़ना है, हेड ऑफ द टरबाइन। इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक तो पेन स्टॉक के अंदर में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका भी वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी होगा, बोलो। यस सर। उसका मैं नाम लिख रहा हूँ V स्टार के स्टार दे दिया मैंने, ठीक है, V स्टार। उसके अंदर इसका कुछ डायमीटर भी होगा ना, वो मैंने दे दिया D स्टार, ठीक है। D स्टार इसका लेंथ भी होगा, दैट इज कॉल्ड L स्टार, ठीक है। इसको बोलते हैं गेट रेस लेवल। इसको क्या बोलते हैं, ये भाई कोई बात नहीं। और इसको क्या बोलते हैं, HG बोलते हैं, ठीक है। इनलेट ऑफ टरबाइन मैंने लिख दिया यहाँ पर। सर टरबाइन है, डैम सर, इनलेट ऑफ डैम। इनलेट ऑफ, यस सर, टरबाइन सर है। इनलेट ऑफ टरबाइन, ये क्या है, इनलेट ऑफ टरबाइन। होता है और बताओ कुछ बचा हुआ है? हाँ, और ये इनलेट ऑफ टरबाइन है, तो ये एग्जिट ऑफ पेन स्टॉक होगा ना। एक बात बताओ यार, देखो ये अगर इनलेट ऑफ टरबाइन है यहाँ से, तो ये पेन स्टॉक है, इसका ये एग्जिट है ना, एग्जिट पॉइंट है ना ये, यस सर। so we call it exit of pain stop। तो लिखो ग्रॉस हेड, GROSS, लिखो पहले ग्रॉस हेड। क्रॉस सेट है। क्रॉस 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 ग्रॉस हेड, यही है। लिखो सेम, उसमें क्या लिखे थे, इट इज द हेड अंडर विच क्या लिखे थे? Pump has to work. ये
It is higher second which pump has to work. देखो इट इज सेम इसी तरीके यहाँ लिखेंगे, वहाँ पर बैरोमेट्रिक हेड में क्या लिखे थे, इट इज द हेड अंडर विच Pump has to work. पंप हैज टू वर्क। यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन Under. सर it is head. टरबाइन टरबाइन हैज टू वर्क। टरबाइन हैज टू वर्क। Turbine has to work. सर It is the head under which turbine has to work. देखना It is देखना है Yes sir. ये head under which टरबाइन हैज टू वर्क। turbine। हैज टू वर्क। यहाँ पर आप turbine के जगह में हाइड्रोलिक प्लांट लिख सकते हो, क्योंकि पूरा हाइड्रोलिक प्लांट है ना, हाइड्रोलिक या तो turbine का क्या है, it is the head under which turbine has to work। Second head देखो, It's first head. ठीक है, सेकेंड हेड लिखो नेट हेड। ये क्या है, नेट हेड, सेकेंड हेड है। सॉरी, एक गलती लिख दिया मैं। क्रॉस हेड में लिखो इट इज द हेड अंडर विच हाइड्रोलिक प्लांट वर्क। यहाँ लिखो हाइड्रोलिक प्लांट वर्क, क्योंकि यहाँ पर टरबाइन यहाँ पर है। यस सर। अंडर विच हाइड्रोलिक प्लांट वर्क, पूरा हाइड्रोलिक प्लांट है भाई, ये पूरा हाइड्रोलिक प्लांट है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्लांट हाइड्रोलिक प्लांट वर्क। देखो किसके पास चले हैज टू वर्क। इसके बारे में देखो, नेट हेड के बारे में, इसको एच से डिनोट करते हैं। इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन वर्क। इट इज द हेड अंडर विच टरबाइन वर्क। अंडर विच ठीक है। So नेट हेड, ठीक है, तो ये क्या है, ग्रॉस हेड। ग्रॉस हेड का मतलब सारा चीज आएगा, ये आएगा प्लस ये भी आएगा, सब कुछ आएगा। नेट हेड देखो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू एच जी तो आएगा ही, ठीक है। पर एक बात बताओ, ये फ्रिक्शन लॉस है ना, वो नहीं आएगा। क्यों सर? देखो ये जो हाँ, एक बार बताओ, जो ग्रॉस हेड होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, नेट हेड रहेगा टरबाइन हेड प्लस ये पिंग स्टॉक का भी जो हेड वो कैलकुलेट करेगा एचजी में, तो क्या होगा, इसमें जस्ट माइनस करना पड़ेगा फ्रिक्शनल हेड, ठीक है। तो फ्रिक्शनल डार्सी इक्वेशन पढ़ेगा आप लोग। यस सर। तो मैं जस्ट वही डार्सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एफ एल, देखो एल है ना, एल स्टार दिया मैंने, एफ एल स्क्वायर स्टार स्क्वायर, ठीक है। एफ एल बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी डी, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें ग्रॉस हेड में ये जो पेन स्टॉक का हेड है ना, फ्रिक्शन वाला, वो रिमूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। हमें तो ये हेड चाहिए ना यहाँ का, हमें इससे क्या मतलब है, अच्छा ये जो पेन स्टॉक का आ रहा है, इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, दिस इज ओवर ना। अब कर लो, बताओ यूनिट 1 खत्म हो गया। यस सर। बना लो यूनिट 1। सेकंड यूनिट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, आज ही खत्म कर देंगे एग्जाम में, ठीक है, पूरा। शाम में सर।
क्लास है ना आज? लंच के बाद देगा, लंच के बाद 2:30 कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक बाबा, आप लोग सबसे अच्छा हैंडराइटिंग किसका है? शिवम का। दिखाओ। लेकिन सर पूरा क्लास नहीं समझे। इसका सर और दिखाओ। हाँ इसका ज़्यादा अच्छा। ऐसा करो, तुम एक PDF बनाओ इसका और ग्रुप में दे दो, ठीक है? आज का क्लास का, ठीक है आज का क्लास का, ठीक है? सर आज की सर का एक बार देखिए। स्कोर भी अच्छा है क्या? पूछो। बहुत अच्छा है सर। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? नेट रेट क्या होता है? देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया ये सब चीजें तो डायग्राम के साथ बनाना है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज सामने क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें जो है ना वेलोसिटी और डी मतलब डायमीटर है। अभी थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे ना, अभी एल का स्क्वायर अच्छा एक बात बताओ, आप लोग नहीं पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं वाला समझ रहे हैं? उसको बंद कर देना ना।